Okay, so today we will learn about tree. Can anybody tell me which type of data structure tree is? Non-linear type of data structure and primitive type. Very Yeah, good. sir. It's a non-linear data structure, right? What it means? Non-linear means data may or may not be in sequence, Sequence. right? We cannot save data consecutively, one after another. That means we have some blank spaces in the memory spreaded around, and on those spreaded memory we have to store the data. And this is the common scenario we will have at the time of storing any data in the data structure, right? In the memory. So tree and graph, there are two nonlinear data structures, right? So first one we will cover tree. This is your fourth unit, I think, right? Fifth unit we already covered. It's third unit. First, second, fifth we have covered, right? Okay. So tree. What do you understand by tree? Have you seen any tree? How it looks like? Yes, sir. This will be its root. Root and leaves, sir. This looks like this. Tree look like this. This is the natural tree we have in the market, right? But in data structure, tree looks different, totally different. It's just opposite to this tree. Root will be on the top, and we will reverse the tree like this. So root remains on the ground, but in the nature's tree, it will be the bottom of the tree, and in DS tree, it will be top of the tree. Clear? No issue? Okay, then tell me why we are implementing tree data structure, where it is applicable. See, if you have data which don't have any hierarchy in it, then you can use any linear type of data structure, right? But there are the cases where you have hierarchy. For example, if in your FET also or Gurukul also, there on the top who is there? VC. Vice Chancellor, sir. On the top, Vice Chancellor, sir. VC sir will be there, right? Under him, multiple Dean. department deans will be there. Deans of management, deans of technology, deans of pharmacy, pharma, deans of technology, deans of yoga, like that, right? And under the dean, who all are there? HOD. HODs, HODs of electronics. Let me represent it by HE, HC, HOD of computer, HM, HOD of mechanical, right? Under the HOD, faculties, faculty of data structure, faculty of मैथ्स, फैकल्टी ऑफ दिस एंड दिस, ऐसे करके बहुत सारे हो जाएंगे आपके, राइट? यहाँ पर मल्टीपल हो जाएंगे, और इनके भी नीचे कौन होंगे? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो आपके सीआर हैं पहले वो आएंगे, उसके नीचे आपके पूरे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो एक हायरार्की है बच्चे, देयर इज हायरार्की कि भाई टॉप पर वीसी सर हैं, उसके बाद डीन्स हैं, देन एचओडीज हैं, देन स्टूडेंट्स हैं, या फिर फैकल्टी हैं, देन स्टूडेंट्स, ऐसे करके, right? So there will be a hierarchy. In this type of scenario, we generally use tree. Now, see, it looks like tree, which we discussed just before. And this is a root of a tree, right? And these are the nodes of a tree. These are the nodes of a tree. समझ में आ रहा है बच्चे? किसी को भी प्रॉब्लम है? नहीं है ना? आप आगे बैठ बच्चे, गैप मेंटेन करो बच्चे, आप आगे आ जाओ, एक आगे आ जाओ, ठीक है? तो जब भी हायरार्की होगी, इसका मतलब हमें ट्री डाटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, ठीक है? और
अगर ये रूट है, ये भी एक नोड ही है, रूट भी एक नोड है, दिस इज ऑल्सो ए नोड, this is also a node, this is also a node, this is also a node, all are the nodes, and this line which are interconnecting two nodes are referred as, anybody, these lines which are interconnecting two nodes, branch, in general you can say branch, but in this tree terminology Hello. we termed as edge, right? Okay, tell me guys, who is saying, are you saying something? Hello? Hello, sir. Yes? Sir, in upcoming concepts, I am suggesting that if you explain the code in the computer and show it for us, sir, we will get an idea, sir. Code in computer, but here in classroom we don't have computer, right? Sir, we will get an idea, sir, if you explain the code in the computer itself. You show. If you run the code Guys, in we the are in class. offline class, right? Yes, sir. We cannot do code here, right? We can explain it, but we cannot code here right now. Yes, sir. Yes, sir. Okay? So Okay, sir. there are some limitations of offline classes, right? Okay. So now when if you understood structure of tree, now let us come to the terminologies, basic terminologies of a tree data structure. So what do you think basic terminology will be? Nodes, root, right? Let's say we have this tree. A is here, B, C, D, E, F, G, H, I. Let's say this is our tree. It is representing tree, right? And on the top, A is there. A will be the root, right? So it is a root of the tree. That means it is the initial point of your tree, first element of the tree, right? That means how to define root? Any node which don't have any parent. Root don't have any parent. If it is root, that means it don't have any parent. It is the first one in the tree. So root is the, what it means by root? Any node which is not first node. You can say first node, but any node which don't have any parent node. Parent node will be, if I say this node, its parent will be A, its parent will be A, its parent E, but E is not a root node. But you can see every node has its parent, but only one node is there which don't have any parent, right? Which is that root node, right? So we can define tree grows from top to bottom, and root node will be don't have any parent. We can define it as don't have any parent node, right? So it will be recognized as level 0 of a tree, right? Okay, and how we can define a parent node? Is there any way we can define a parent node? How to define a parent node? Immediate प्रेसिडेटर ऑफ एनी नोड. अगर आपको इसका पेरेंट निकालना है तो इसका इमीडिएट प्रेसिडेटर कौन है? सी. तो सी विल बी द पेरेंट ऑफ एच. तो इमीडिएट प्रेसिडेटर ऑफ एनी नोड इज द पेरेंट ऑफ दैट नोड. सिंपल लिखना पड़ेगा इसे. आप लिखते रहो इसे क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा ये चीज, राइट? मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि टाइम वेस्ट होगा. मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिखते रहो साथ साथ. तो रूट के आगे लिख लेना डैश करके डोंट हैव एनी पेरेंट, एनी नोड विच हु डोंट हैव एनी पेरेंट, राइट?
parent node, immediate preceder of any node, immediate preceder of any node, right? For example, if I want to find parent of F, then immediate preceder B. I want to find parent of I, immediate preceder E. E will be the parent of I, right? Okay. Next, child node. How to define child node? Immediate successor. Write it down. Immediate successor of any node. So, if I want to find the child of C, so immediate successor G, immediate successor H. It has two childs, right? Have you all written? Now come to next concept, which is leaf node and non-leaf node. Can you find the leaf node in this tree? Leaf node. Last node. Last nodes of the tree. I will be there. I will be in leaf node. F will be leaf node. These all are the leaf nodes, right? But because they are at different level, so it is tough to identify. But if those will be under same level, it is easy to find, right? So leaf node always refer as external node. अगर हम बाहर से अगर ट्री को देख रहे हैं तो हमें लीव्स दिखती है ना, रूट्स तो नहीं दिखते पहले, लीफ दिखती है सबसे पहले. तो ऐसे ही इस ट्री में लीफ कौन सी होंगी? जो एक्सटर्नल नोड्स हैं. जैसे हमारी ये सारी क्या है? आपकी लीफ नोड्स हैं. लीफ नोड्स हैं ये, राइट? इनको हम जब देखेंगे तो ये बाहर से हमें दिखेंगे सबसे पहले. तो वो नोड्स जो आपको बाहर से सबसे पहले दिख रही हैं या फिर लोएस्ट में है, सबसे डेप्थ में है आपके ट्री के, सबसे बॉटम में, बॉटम से देखोगे तो सबसे पहले वो दिखेंगी आपको. तो वो कौन सी होंगी? लीफ नोड. यानी कि लीफ नोड की एक और तरीके से हम बोल सकते हैं ऐसी नोड जिसके चाइल्ड्स ना हो, राइट? ये भी सही होगा क्या ना? इनके चाइल्ड्स नहीं है. हाँ, डीबी होगा, ये भी होगा, जिनके चाइल्ड्स ना हो. तो इसमें आपको किस किस के चाइल्ड्स नहीं दिख रहे हैं? गुड, वेरी गुड. तो आप लिख सकते हो लीफ नोड विल बी विच डोंट हैव चाइल्ड नोड, और they are referred as external nodes, right? And non-leaf nodes, any node apart from these nodes, any node apart from leaf nodes are non-leaf node, right? तो कौन कौन सी होंगी इसमें? non-leaf nodes कौन कौन सी हैं? ये B, C, E, A, राइट? इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल नोड्स. इंटरनल नोड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमें डायरेक्टली आपको दिखेंगे नहीं, ये बीच में है, ऊपर है, अंदर की तरफ, राइट? तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? नॉन लीफ नोड. ये टर्मिनोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गई चीजें तो आप जब ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा. अगर कोई स्टेटमेंट लिखी होगी कि नॉन लीफ नोड ऐसे करके, तो आपको याद आ जाएगा तुरंत कि नॉन लीफ नोड कौन कौन सी है इनमें से. उससे आपको आइडिया लग जाएगा, समझना आसान हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं पाथ पे, कि भाई मान लो मुझे इस ट्री में आई को ढूंढना है, तो कहां से जाऊंगा मैं? कैसे ट्रैक करूंगा आई को? ए से बी, बी से ई, ई से आई. The path will be a group of edges from root to that node. सिंपल, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. सिंपल है ना भाई? कोई भी पाथ अगर आपको डिफाइन करना है, मान लो इसको सर्च करना है आई को, तो ऑब्वियसली बात है आप जिन जिन नोड से होके गुजरे हैं वो उसका पाथ है. तो उनको हम किससे डिफाइन करते हैं? एक पाथ, ये जितनी भी उसमें एजेस हैं उन सबको कंसिडर किया जाता है. तो रूट से लेके उस नोड तक का. अब इसका पाथ क्या होगा? ए टू बी, बी टू एफ. इसका पाथ क्या होगा? ए टू सी, सी टू एच. क्लियर?
सिंपल। तो पाथ क्या डिफाइन कर रहा होगा? जब हम पाथ की बात करते हैं, किसी भी नोड तक जाने का पाथ, एक रूट, राइट? तो उस रूट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम? कलेक्शन ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू दैट नोड, सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ। अगर हम कहें तो सिक्वेंशियल कलेक्शन। हम ये नहीं बोल सकते कि पहले ए टू बी, फिर ई टू एफ, फिर बी टू ई। नहीं, सिक्वेंशियल मीन्स एक सीक्वेंस में होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी वी कैन हैव एंसिस्टर एंड डिसेंडर। एंसिस्टर किसे बोलते हैं बच्चे? पूर्वज। तो एनी प्रीसीडिसर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड। इसमें लिखो एनी predecessor node on the path from root to that node. ओके, तो इसमें अगर मुझे आई का एंसिस्टर ढूंढना है, आई के एंसिस्टर कौन होंगे? EBA are those ancestors, right? And FK, BA, and descender उसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे इसमें लाइन लिखा हमने, एनी, हाँ, इसमें सक्सेसर जुड़ जाएगा, राइट? इसमें सक्सेसर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो डिसेंडेंट विल बी एनी सक्सेसर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम द नोड टू लीफ नोड। समझ में आया? इसमें थोड़ा चेंज आएगा, फ्रॉम दैट नोड टू लीफ नोड। तो अगर मेरे को सी के डिसेंडर ढूंढने, तो सी के डिसेंडर कौन कौन से होंगे? जी एन एच, है ना? आप यहां रूट से थोड़ा देखोगे, आप तो उस नोड से देखोगे ना, आपको डिसेंडर देखना है, उस नोड के डिसेंडर्स देखने हैं। तो डिसेंडर्स कौन से होंगे? जो इससे नीचे, तो यही होंगे। तो नोड टू दैट लीफ नोड, जब तक लीफ नोड नहीं आती। अगर यहां पर एक और नोड होती, के होता, तो ये भी इसका डिसेंडर होता। तो क्या हो जाता? जी एच के। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? ठीक है। नेक्स्ट वी कैन हैव सब ट्री। सब ट्री किसे बोलते हैं? एनी गैसेस? ब्रांचेस। हाँ, तो इसमें इसमें आपके कितने सब ट्री हैं? इसमें आपके कितने सब ट्री है बच्चे? एक सब ट्री तो ये है, एक ही सेल्फ ट्री, ठीक है। अगर ये ट्री है, अगर मैं यहां से ट्री को मान रहा हूं, ए से ट्री को मान रहा हूं, रूट से ट्री को मान रहा हूं, तो उसके सब ट्री कौन से बोलूंगा? जो उसके नेक्स्ट होंगे डिसेंडेंट, इमीडिएट डिसेंडेंट जो है, उनके जो ट्रीज हैं अपार्ट अप टू लीफ नोड, है ना? उस नोड के साथ साथ जितने भी उसके नीचे तक लोड है, पूरा ट्री जो है उसका, दैट विल बी कॉल्ड सब ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री। तो इसके तीन सब ट्री हैं, राइट? अगर ए का देखें तो तीन सब ट्री है, एक, दो, तीन। अगर चार चौथा होता तो चौथा भी उसका सब ट्री होता। क्लियर? डाउट क्लियर करते जाना बच्चे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। नेक्स्ट, सबलिंग, सिबलिंग। सिबलिंग्स तो पता ही है, भाई बहन। तो सिबलिंग को कैसे डिफाइन करोगे ट्री में? सेम लेवल पे होने चाहिए, है ना? कॉमन पेरेंट, एक ही पेरेंट होना चाहिए। तो ये दोनों सिबलिंग है, राइट? ये दोनों सिबलिंग है, ये दोनों भी सिबलिंग है। बट ये दोनों सिबलिंग नहीं बोल सकते हम उन्हें, क्योंकि उनके पेरेंट कॉमन नहीं है। ग्रैंड पेरेंट है पर पेरेंट नहीं है। तो दैट विल, दोज विल बी नॉट इंक्लूडेड इन सिबलिंग। रूट के पेरेंट्स, हाँ, ये तो सिबलिंग होंगे ना, इनका तो पेरेंट सेम है। तो ऑल द नोड हैविंग सेम पेरेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज सिबलिंग, है ना? बट अगर सेम पेरेंट नहीं है तो वो कजन सिबलिंग है, वो रियल सिबलिंग नहीं हो, राइट? ओके। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ ए ट्री, डिग्री ऑफ ए नोड। अगर डिग्री आपको देखनी है तो कैसे, क्या करना है आपको? अगर मान लो
किसी नोड की डिग्री देखनी है तो नंबर ऑफ चाइल्ड दैट पर्टिकुलर नोड हैज, नंबर ऑफ चाइल्ड कितना है इसके, 2, राइट। तो वो इस नोड की जो डिग्री हुई वो क्या हो गई, 2। अगर डिग्री ऑफ ट्री देखेंगे तो कितने चाइल्ड है उसमें, 3। तो डिग्री ऑफ ट्री विल बी 3। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 हो जाती, अगर यहाँ पे ये वाला होता ही नहीं, एक और ना होता तो 2 होती। तो डिग्री ऑफ ए ट्री समझ में आ गया। ट्री का मतलब उसके कितने वो हैं, चाइल्ड हैं। केवल चाइल्ड देखोगे आप, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं देखोगे, कंफ्यूज मत होना वहां पे। जिस भी नोड का देखना है उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिन लेना कितने हैं। अगर यहाँ पे तो 2 है, अगर यहाँ पर एक और चिल्ड्रन होता तो ये सब इसकी डिग्री कितनी होती, 3। क्लियर, हॉच पॉच नहीं हो रहा। इसमें ज्यादा हॉच पॉच तो नहीं हो गया, चेंज करो इसे। ऑनलाइन पीपल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Or sir. I should make a clean one. A, B, C, D, E, F, G, H and I. I. अभी ठीक है ना? तो डिग्री क्लियर हो गया बच्चे? डिग्री क्लियर हो गया? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी वी कैन हैव डेप्थ ऑफ ए नोड। डेप्थ ऑफ ए नोड कि उस ट्री में उसकी डेप्थ कितनी है, राइट। तो इसमें लिखो आप लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड, फ्रॉम रूट टू दैट नोड। तो यहां पर अगर आपको बताया पूछा जाए कि आई की डेप्थ कितनी है बच्चे, तो 1, 2, 3। अगर जी की बोले, तो 1, 2। दिस विल बी द डेप्थ ऑफ दिस। एंड डेप्थ ऑफ द ट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंडिविजुअल का तो आपको पता चल गया। डेप्थ ऑफ ट्री फ्रॉम रूट टू हाईएस्ट लीफ नोड, जो भी सबसे मैक्सिमम आपके पास डेप्थ है वो जितनी होगी वही आपकी ट्री की डेप्थ होगी। तो यहां पर हाईएस्ट जो डेप्थ है 3 की है, तो डेप्थ ऑफ दिस ट्री विल बी 3, राइट। देखो दो चीजें हम समझ रहे हैं, एक तो नोड का डेप्थ, एक हम ट्री की डेप्थ। तो कंफ्यूज मत होना इनमें कहीं पे भी। नोड को जब हम देख रहे हैं तो नोड की स्पेसिफिक देख रहे हैं, जब हम पूरी ट्री की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट ए से लेके हाई लॉन्गेस्ट जो पाथ उसके पास अवेलेबल है वो उसकी डेप्थ होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये उसकी डेप्थ होगी, ये उसकी डेप्थ नहीं होगी। डेप्थ होगी जो लॉन्गेस्ट पाथ अवेलेबल है उसके पास, राइट। नेक्स्ट, हाइट ऑफ ए ट्री। इसमें लिखो number of edges in the longest path from that node to a leaf। तो हाइट अगर मेजर करनी होगी तो मान लो इसकी हाइट अगर पता करनी है तो ऑब्वियसली बात है, हाइट हम कहां से देखते हैं, बॉटम से देखते हैं, राइट। यानी कि हम यहां से देखने वाले हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर मेरे को हाइट ऑफ बी पता करनी है तो कितनी होगी, दैट नोड टू लीफ, उस नोड से चलना है और लीफ तक जो उसके पास मैक्सिमम है। तो हाइट ऑफ बी विल बी 2 एंड हाइट ऑफ ए 1, 2, 3। तो कुछ में आपको सेम मिलेगा, कुछ में हो सकता है डिफरेंट हो, राइट। तो कंफ्यूज मत होना, डेप्थ और हाइट है दोनों सभी चीजें एक दूसरे लिंक्ड,
बट कई केसेस में ये दोनों सेम भी होती है, कई केसेस में नहीं भी होती है सेम, राइट। चलो नेक्स्ट लेवल, ट्री की तो एक ही रहेगी, पर नोड की डिफर कर सकती है ना, नोड की डिफर नहीं करेगी। एक बार चेक करना, इसी पे लगा के देखना जो मैंने अभी तेरे को लिखा है, उसको जरा एक बार सोचना दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट लेवल, लेवल ऑफ ट्री, लास्ट वन, लेवल ऑफ ट्री। अब लेवल फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू दैट नोड, राइट, और वी कैन ब्रैकेट में लिख लेना नंबर ऑफ एजेस, डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू दैट नोड। अब रूट से वो किस लेवल पर है, तो इन जनरल रूट विल बी एट लेवल 0, और जितने भी ये नोड्स हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आप जब भी इन नोड्स का BCD का निकालोगे तो लेवल 1 आएगा, उसके नीचे वालों को निकालोगे तो लेवल 2 आएगा, राइट। तो कई बार आपका लेवल और हाइट दोनों सेम होंगी, राइट बच्चे। लेवल क्लियर हो गया, क्योंकि लेवल और हाइट का हम यूज करेंगे आगे, जब हम अभी पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि लेवल और उसका फॉर्मूले जो हम बनाएंगे वो उन्हीं से बनेंगे, या तो हाइट से बनेंगे या लेवल से बनेंगे या नंबर ऑफ नोड से बनेंगे। तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई ये वाली। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। तो एक तो हमने समझा जहां पर भी आपकी हायरार्की होगी वहां पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट, सिंपल। तो अगर हम इसको एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं इसकी, कहाँ कहाँ पर आपको लगता है हायरार्की, आप लोग कंप्यूटर यूज करते हो, वहां पे कहीं दिखता है आपको कि हायरार्की है कहीं पे, देयर इज सम हायरार्की? नहीं, नहीं, आपके सिस्टम में, मेमोरी में। हाँ आपके सिस्टम में एक ड्राइव सी है, एक डी है, होगी, ठीक है। इसके अंदर फिर फर्दर फोल्डर्स हैं, उनके अंदर फाइल्स हैं या फिर अनदर फोल्डर्स हैं, फिर कई फाइल होंगी। हायरार्की है, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो ट्री को ही फॉलो करता है, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज फाइल सिस्टम। जो हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज फाइल सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर। तो जब भी हम फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं तो हम ट्री का स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जब भी आप कोई फाइल खोलते हो तो उसका पूरा एक पाथ आता है ना, सी ड्राइव, डेस्कटॉप, उसके अंदर फोल्डर का नाम, फिर अनदर फोल्डर का नाम, फिर ऐसे करके आता है, कुछ नहीं आता, आता है ना। तो वो एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जिसे आप बोल रहे हो वो एक फाइल सिस्टम है, तो फाइल सिस्टम में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और नेटवर्क में जब हम नेटवर्क इंटरनेट की बात करते हैं तो वहां पर भी ये इंप्लीमेंट करते हैं हम राउटिंग के लिए, होता है वहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है ना। देखो भाई, आपका जो इंटरनेट आता है पहले वो कंट्री में आता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट्स में, स्टेट्स में आता है, पहले यहाँ पर कंट्री आ गया, यहाँ पर स्टेट्स आ गए, देन डिस्ट्रिक्ट, राइट, फिर उसके नीचे टाउन्स आएंगे, फिर कॉलोनीज आएंगी। तो इंटरनेट ऐसे ही तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। मेन सर्वर, फिर उसके सब सर्वर जो होंगे उनके पास जाएगा डाटा, ऐसे करके। तो जब आप कनेक्ट करते हो तो पहले छोटी से बड़े बड़े की तरफ जाते हैं, जब हम कनेक्ट करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे तो यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, यहाँ पे, तब हमारा मेन सर्वर से रिस्पॉन्ड करता है, फिर जो रिस्पॉन्स आता है वापस इसी हायरार्की में आता है। ऐसा तो नहीं इसका, इस वाले का रिस्पॉन्स इधर जाएगा, इधर तो नहीं जाएगा, तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा ना, पाथ एड्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो जो एड्रेसिंग है, राउटिंग एड्रेसिंग जिसे हम बोलते हैं, रूट एड्रेसिंग जिसे हम बोलते हैं, वहां पर भी हम इसी का यूज करते हैं, राइट। और आपके सर्चिंग में यूज होता है, जब आप सर्च करते हो, क्विक सर्च करते हो जब आप, तो उसमें आप BST नाम सुना होगा आपने, बाइनरी सर्च ट्री, उनका यूज करते हैं ताकि हम सर्चिंग को बहुत फास्ट अप कर सकें या फिर जल्दी से उसे हम सर्च कर सकें। तो ट्रीज में हम बांट देते हैं अलग अलग, फिर हम उसमें सर्चिंग शुरू करते हैं। तो क्विक सर्च जब हम करते हैं BST का यूज करके, वहां पर भी हम लोग इसी का यूज कर रहे होते हैं, राइट।
यहां तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं कि भाई इज इट पॉसिबल कि आप इस ट्री को ही इंप्लीमेंट कर सकते हो? ट्री कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप? मेमोरी में तो नहीं कर सकते आप इसे, ऐसे ऐसे तो नहीं समझता कंप्यूटर। तो ये तो आपका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन था, आपको दिख रहा है तो इसलिए आप समझ पा रहे हो, कंप्यूटर थोड़ा ना समझेगा ऐसे। कंप्यूटर को तो आपको इसको डिजाइन करके देना पड़ेगा ना। उसके लिए आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करोगे? शुरू में बताया था। नॉन लीनियर बिग है बच्चे। नॉन लीनियर सर। नॉन लीनियर तो है, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो जिससे हम इसे इंप्लीमेंट करें? क्या हम इसे एरे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं ट्री को? तो आपके हिसाब से कौन सा होगा? लिंक्ड लिस्ट। मैंने बोला था ना कि हर जगह लिंक लिस्ट आने वाला है, क्योंकि हर डाटा स्ट्रक्चर इसी से इंप्लीमेंट करने वाले हो आप, है ना? तो अब मान लो आपका ए ये ट्री है, बी लेट्स से ये आपका ट्री है। छोटा सा ट्री बना लेते हैं अभी समझने के लिए। तो जब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले एक नोड बनाएंगे, फर्स्ट नोड। अच्छा, लिंक लिस्ट में क्या क्या होता है? एक नोड में, लिंक लिस्ट के एक नोड में क्या क्या चीजें होती हैं? एक, हाँ हाँ और बोलो बोलो। डाटा सर। एक तो एड्रेस होता है, करेक्ट है। दूसरा डेटा सर। डाटा डेटा। सर। ऑनलाइन पीपल ज्यादा इंटेलिजेंट है आपसे। डेटा और एलिमेंट दो ही चीजें तो होती है। ओ सॉरी, एलिमेंट और पाथ, मतलब उसका पॉइंटर, एड्रेस, है ना? तो अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा, अगर मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है, तो मेरी नोड में कितने पोर्शन होने चाहिए? एक तो डेटा होगा ही होगा, और फिर सर पॉइंटर होगा और फिर वो लेवल के हिसाब से क्या चले। इससे चल जाएगा काम? चल जाएगा इससे काम? तो सर इसको लिंक करना होगा अनदर नोड के साथ सर ए को। हाँ, तो लिंक कैसे करूंगा बता मुझे। मेरे पास सर रूट को मैं अभी बना रहा हूं, तो रूट मैंने बनाया, यस उसका ए मैंने डेटा में डाल दिया, ये मेरा डेटा पार्ट है। मेरे यस सर। पास फिर एक इसके पॉइंटर है, ये मेरा पॉइंटर है एक। तो क्या फिर इसके इस पॉइंटर से एक दूसरे पॉइंटर से बना डाटा सकता को हूं मैं फिर इसे? फिर फिर सर बी को इसके एड्रेसिंग करेंगे सर। सर अच्छा, ये जो मेरी नोड है बेटा, मैं सुन रहा हूं तेरे को। ये जो मेरी नोड है, ये कौन हाँ सी लिंक लिस्ट है? सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है? सिंगली सर। सिंगली है ये। तो इससे तो मैं इंप्लीमेंट यस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरे दो चाइल्ड हैं। सर। तो मुझे डबली लिंक लिस्ट रिक्वायर्ड होगी। यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो अब मैं इसको क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है? वन एड्रेस विल बी यूज्ड फॉर लेफ्ट चाइल्ड एंड अनदर विल बी यूज्ड फॉर राइट वन। क्लियर? अब मैं बी को भी इंप्लीमेंट कर देता हूं ऐसे ही मैं सी को भी नोड्स क्रिएट कर देता हूं, डी की भी नोड क्रिएट कर देता हूं। तो ये आ गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। डेटा विल बी बी एंड सी। क्लियर? अब मैं इसका जो एड्रेस है, इस वाली का एड्रेस है, वो पास कर दूंगा यहां पर। एड्रेस ऑफ बी, इसका एड्रेस पास कर दूंगा यहां पर। एड्रेस ऑफ सी, कनेक्ट हो गई। अब ये इसका क्या है? लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है? लेफ्ट। तो यहां पर आ जाएगा एड्रेस ऑफ डी, राइट। तो यानी कि ये इंटरकनेक्ट हो जाएगी इससे। तो इस ट्री का मेरे पास एक सब ट्री बन गया, मतलब एक ट्री बना दिया मैंने लॉजिकली लिंक लिस्ट का यूज करके। ए के लेफ्ट में बी का एड्रेस होगा, राइट में सी का एड्रेस होगा। बी के लेफ्ट में डी का एड्रेस होगा, राइट में क्या होगा? व्हाट विल बी देयर इन राइट पार्ट ऑफ बी? यहां पर क्या इसका कोई चाइल्ड है? राइट चाइल्ड है इसका? तो नो नहीं तो है, तो सर क्या करते हैं हम? लास्ट नोड में क्या होता है वो एड्रेस? ए का एड्रेस सर बी नल में होता है डालेंगे सर। सर ना। नल होता है ना? यस सर। नल वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। तो ये नल वैल्यू डाल दी मैंने, जिन जिन के चाइल्ड नहीं है उनके नल वैल्यू डाल दी। So logically, by using linked list, we have created this tree. We have only one option, linked list.
इसीलिए मैं कह रहा था कि लिंक लिस्ट पे कमांड कर लो, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर इससे आप बना सकते हो। आप इससे एरे बना सकते हो, आप इससे स्टैक बना सकते हो, क्यू बना सकते हो, जो आप चाहते हो बना सकते हो बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। राइट डियर, है बच्चे? ना ना, ये जो बात कर रहे हैं हम, ये एक बाइनरी ट्री है, 3 होंगे तो 3, राइट? बट हम लोग जनरली अभी जो बात कर रहे हैं बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास 2 ही एड्रेसेस हैं। क्लियर? 3 वाले में 3 एड्रेसेस चाहिए, जितने एड्रेस चाहिए होंगे उतने एड्रेस पार्ट होंगे उसमें। समझ रहे हो? लिंक लिस्ट का यही तो फायदा है, फायदा यही तो था उसका कि हम लिंक कर सकते हैं एक दूसरे नोड से। यही तो फायदा है। अगर अच्छा, इसको इसको जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो मैं किससे इंप्लीमेंट करूंगा? क्या मेरे पास कोई प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है इसके लिए, इसको क्रिएट करने के लिए? है कोई तरीका? लिंक लिस्ट को कैसे करता था मैं? क्या मेरे पास कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो लिंक लिस्ट को डायरेक्टली काम कर सके, बना सके? नहीं। क्या करते थे हम? लिंक लिस्ट में पढ़ा था हमने, क्या बनाते थे हम? भाई आपका ये जो डेटा स्ट्रक्चर, जो जो आपने ये नोड बनाई, ये जो आपने नोड बनाई, जिसमें ये तो है आपका डेटा, राइट? और ये क्या है आपके? ये दोनों पॉइंटर्स। एड्रेस। तो क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा तरीका है डाटा स्ट्रक्चर में जिसमें आप ऐसे तरह का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, जिसमें 2 डिफरेंट तरह की वैल्यूज पड़ी हो, डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स हो? स्ट्रक्चर। हाँ पता है मुझे, ऑनलाइन वाले ज्यादा इंटेलिजेंट है, यहाँ पे जो ऑफलाइन है ना, ये सारे क्रिकेट खेलने आते हैं यहाँ पे, इन्हें पता ही नहीं है। स्ट्रक्चर सर आप स्ट्रक्चर नाम सुना है? पढ़ाया था जब इंप्लीमेंट करा था इस लिंक लिस्ट को, तब भी आया था वो। कुछ क्या था वो? अगर अब चलो मेरे को यही इंप्लीमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चे? स्ट्रक्ट नोड, ऐसा ही था कुछ। एक तो डेटा पार्ट है, वो तो इंटेलिजेंट का है, वो तो इंटीजर का है, तो मैंने एक एक्स इक्वल ले टू लिया। अब मेरे को 2 एड्रेस पार्ट चाहिए, मेरे को 2 एड्रेस चाहिए ना, 2 एड्रेस पॉइंटर। क्या लिखूं यहाँ पर? मैंने उनका नाम दे रखा है, एक तो मैंने लेफ्ट के लिए लिख रहा हूं और एक राइट के लिए। दोनों में structure लिख दीजिए सर। दोनों का डेटा टाइप क्या होगा बच्चे? जो Node। पॉइंटर हैं उनका डेटा टाइप क्या होगा? इसका तो मेरे को पता है, डाटा तो मेरा इंटीजर टाइप का, तो मैंने इंट डिफाइन कर दिया, नो प्रॉब्लम। बट जो पॉइंटर में लेफ्ट और राइट यूज करने वाला हूं, जिनको मैं स्टोर करने वाला हूं वहां पर, उनका डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रक्चर नोड। ये मेरी है, ये मेरा डेटा है, ये मेरे पॉइंटर्स हैं P1 P2, या फिर जिसे मैं बोल रहा हूं लेफ्ट एंड राइट, राइट? तो अब क्या लिखूं मैं डेटा? आप मत बताना बच्चे, ऑनलाइन वाले मत बताओ, मैं इनसे पूछ रहा हूं, क्या लिखूं मैं इनके आगे? यहाँ पे क्या लिखूं मैं? मेरे को डेटा टाइप तो देना पड़ेगा ना इनका। कंपाइलर कैसे समझेगा कि किस टाइप के हैं ये? है ना, क्योंकि ये पॉइंटर है तो मैंने स्टार लगा दिया। किस टाइप के हैं ये? लिखते विखते हो तुम क्लास में कभी? जब मैं पढ़ाता था लिखते थे तुम? वीडियो भी देखते तुम जाके? ये नोड, नोड ही तो डिफाइन कर रहा हूं मैं। जब इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है नोड का? स्ट्रक्ट नोड। अब ये जो यहां पर मैं एड्रेस देने वाला हूं इन दोनों जगह पर, वो किसी नोड का है ना, वो किसका? भाई किसी भी पॉइंटर का डेटा टाइप वही होता है जिसको टारगेट कर रहा होता है। अगर वो इंटीजर वेरिएबल को टारगेट कर रहा होता है तो उसका इंट लिखेंगे, अगर वो कैरेक्टर वेरिएबल को टारगेट करता है तो कैर होगा, फ्लोट टाइप को करता होगा तो फ्लोट होगा उसका टाइप। यहां पर वो किसको टारगेट कर रहा है वो पॉइंटर? नोड को। नोड का टाइप क्या है? स्ट्रक्ट नोड। ऑब्वियसली बात है, उन पॉइंटर का भी क्या होगा? स्ट्रक्ट नोड। तो मैं यही तो याद नहीं रहता बच्चे, ये बोला भी था मैंने कि ये चीज, छोटी छोटी चीजें याद रखना। सिंपल, इससे आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, यानी नोड क्रिएट हो जाएगी। नोड के लिए आपने एक बेस बना दिया कि उसमें किस तरह का डेटा आने वाला है। तो जितने तरह का आपका डेटा आने वाला है उतने आपको यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे।
उनका टाइप, प्रॉपर टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने गलती करी तो वो कंपाइलर एरर देगा, गलत आउटपुट देगा। अगर एरर नहीं दी तो गलत आउटपुट देगा, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा। कंपाइलर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो समझ पाए इस चीज को कि इसका डेटा टाइप क्या है ऑटोमेटिकली। उसको आपको खुद से बताना पड़ेगा। सी में आपको खुद से बताना पड़ता है कि ये चीज मैं यूज कर रहा हूँ तो इसका डेटा टाइप ये है, इसको ऐसे कंसिडर करना है, इसको ऐसे ट्रीट करना। इंटीजर है तो उसको ऐसे इंटीजर की तरह ट्रीट करना, स्ट्रक्ट नोड है तो स्ट्रक्ट नोड की तरह ट्रीट करना, है ना। सी पढ़ी होगी तो पता होगा ना कि हर एक वेरिएबल का हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, उसके हिसाब से उसके साथ मैनिपुलेशन होता है, उसको समझा जाता है, राइट। तो ऐसे आपकी एक नोड क्रिएट होती है, ठीक है। ये आपकी एक डेफिनेशन है एक नोड को क्रिएट करने की। इसका आप यूज करोगे जब आप अभी लैब फाइल बनाओगे, तो उसमें जब कोड करोगे तो देखना ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म है, सबसे ज्यादा ये यूज करोगे आप। और एक और चीज यूज करोगे जब नोड डायनेमिकली क्रिएट करते हो तो मैलॉक बताया था, एक मैलॉक नाम आया था, मैलॉक फंक्शन। लॉक फंक्शन सर। हाँ, तो वो भी आप यूज करोगे। तो ठीक है, टिल दिस पॉइंट टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। डेप्थ कैसे पता करनी है, हाइट कैसे पता करनी है, सब पता चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि डेप्थ, हाइट और नंबर ऑफ नोड्स, इनके टर्म में ही हम लोग जो भी लिखेंगे आगे ट्रीज में, वो हम इन्हीं की टर्म में लिखने वाले हैं। इसलिए पता होना चाहिए आपको कि अगर वो लिखा है 5 तो 5 का मतलब ट्री की हाइट या फिर लेंथ या फिर डेप्थ 5 है, यानी कि 5 नंबर ऑफ लेवल्स आर देयर। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।